Hey everyone, welcome to another edition of Primary Market Chatter. This is our ninth episode, I think. August 4th week IPOs. In this, we'll be covering a couple of mainboard IPOs and then five SME IPOs. So this is going to be slightly longer issue. But what we'll do is we'll maybe just cover at a very high level the issues which we feel are not super important or we feel are could rather be let go of. So we'll try and keep it short, and I'm sure Premier Energies जो सबके लिए most awaited है, we'll start with that. We'll make sure that we kind of cover a lot of those details. So we'll do that. But in the meanwhile, just wanted to highlight that we kind of put this also on our YouTube channel. मैंने YouTube channel first comment में डाला हुआ है. So if you haven't followed the YouTube channel, go ahead and follow the YouTube channel right away. Because हम ये जो space है इसकी recording YouTube channel पे भी डालते हैं, and उसमें मैं क्या करता हूँ कि I tag issues as well so that you can only listen to the relevant part. And we have also worked on the voice as well as the video part of it. So it's slightly more interactive. मैंने जो ये इशू है इसका कमेंट में भी डाल दिया है, पिन भी कर दिया है. थोड़ी देर में आपको ऊपर दिखने भी लगेगा चैनल. But having said that, now we'll kind of get started. Couple of disclaimers very quickly. We are not SEBI registered research analyst. This is not a recommendation in any way to apply to any of the primary issues. The idea is to kind of talk about them from a fundamental space, understand कि जो companies आ रही हैं वो क्या करती हैं, उनकी valuation किस valuation पे आ रही है, promoter का vision क्या है, and talk about it and feel and tell you what we think about the companies, but this is not a qualified read. You also definitely talk to your financial advisor before taking any decision and do your due diligence definitely. With that, maybe I'll set up the order once so that we are clear on what is the order that we'll be following. So we'll first talk about the two mainboard companies जो आ रही हैं. सबसे पहले Premier Energies और Eco Mobility की बात करेंगे. उसके बाद we'll move to the five SMEs and we'll again do them in the order of closing जो हम usually follow करते हैं कि जो IPO पहले close होगा उसकी पहले बात करते हैं. So we'll start with Rapid Multimodal Logistics, then go to VDeal, then JB Lamination and then close with Indian Phosphate, Parametrics and Aeron. So a lot of stuff to cover per se. But having said that, maybe let me see if we have enough people right now. Yeah, we have decent amount of people. Just one more request. If you know any of your friends, go ahead and kind of send them the request as well. This is something which we do on a regular basis. This is our ninth week of doing it. And also kind of follow us on our Twitter as well as follow the YouTube channel. With that, maybe we'll start with Premier Energy. So maybe Tanmay, do you want to start from very high level? What I could say is this is a very interesting issue and much demand. The company, it's a big issue, around 3,000 CR, and the company manufactures solar cells and solar panels. So definitely very interesting issue. Maybe Tanmay, do you want to go ahead and speak about it? Is my audio clear? Yeah. So Premier Energies is India's second largest integrated solar cell manufacturer and second largest solar module manufacturer. It is also the largest solar cell exporter to the United States. The company provides solar EPC maintenance services, operates as an independent power producer IPP. So it has a vast and huge clientele like NTPC, Tata Power, Panasonic, Shakti Pumps, Luminous, Bluepin Energy, Continuum, Semcorp, etc. So the company is basically raising 2831 crores, out of which 1291 crores will be primary raise and 1540 crores will be OFS. So in this primary raise, the company is doing a capex of 922 crores, which they are going to set a new solar wafer manufacturer and doing capex for their next manufacturing facility. And the rest 1540 crore OFS is done by the 80% of that is done by their private equity fund, GF Capital, and the rest is done by the promoters. So it did a revenue. Now I'll come to the financials. They did a FY23 revenue of 1430 crores and they did a net loss of 13 crores. So the reason behind the net loss set by the management was that we did capex of close to 2200 crore between FY22 and 23, and
the setting up of the new capex, those lines took 3 to 6 months to get set. So our efficiencies were not that level. So we recorded a net loss. So this company recorded revenue of 3,143 crores in FY24 and a PAT of 231 crores. Okay, it was a jump of 122% around, and it also disclosed its Q1 FY23 numbers. So the revenue was 1657 crores and the PAT was 198 crores. See, what I'm saying is it is the first quarter, okay, 1657 crore revenue, and the last year, complete year was 3157. And I'll just compare it with the Q1 of FY24. So they did revenue of 611 crores and PAT of 31 crores. So net mein 250% plus jump, and PAT is also more than six times. It is currently sitting on an order book of 5,780 crores as of 31st June. So this company is now planning an expansion. So first I will just say that what current capacities they have. They have a 2 gigawatt solar cell manufacturing and 4.13 gigawatt of solar module manufacturing. So they are adding 1 gigawatt for solar cell, which will be the new technology, TOPCon technology, which will get commercialized in 2025. And they are also setting up a new facility of 4 gigawatt each. See, listen again. They are already having 2 gigawatts solar cell. They are making a new facility of 4 gigawatt each of cell and module. Okay. So first I will just say that how these solar cells are made. Okay, this has basically five basic steps. First, they have polysilicon, then they process ingot, then they go with wafer, then they go with cell, and then they go with the module final. So this company is currently producing modules and cells, and the company has already done a large JV with a Taiwanese company, which they are going to set up a wafer facility of 2 gigawatt, which will get commercialized in FY25 end. And they are also planning to go into ingot and start doing JVs and setting up the facility in FY25. So it will take around 2 to 2.5 years for going into ingot. So this company has already done a JV with Helion USA for establishing TOPCon solar cell manufacturing in the US. So I'll just मतलब मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि यार यूएस का जो डिमांड है ना वो है अराउंड 40 गीगावाट, और उसमें से 5 गीगावाट ऐसा है जो यूएस खुद बनाता है, बाकी 35 इंपोर्ट होता है. सो व्हाट बेसिकली प्रीमियर इज गोइंग टू डू इज दिस कंपनी Helion USA is already a local manufacturer in the US. So they are going to do JV and set up a new manufacturing facility there. So the company has also done a JV for 2 gigawatt wafer manufacturing. They'll start it next year, and also they are planning ingot in FY25, and they are also evaluating 2 more manufacturing facility. Out of them, one is going to be in Gujarat and one will be in existing near Telangana. So just I went and tried to calculate their forward earnings. So what I can see is their FY25 revenue is going to be 7350 crores approx, which is going to be almost a more than a double jump. So the PAT I'm expecting is FY24 they did 231 crores, and I'm expecting FY25 PAT will be 1270 crores. It will be around 6x. And their FY26 expected revenue is 10,860 crores, and PAT is expected to be 1870 crores. I'll just मतलब मैं फॉरवर्ड अर्निंग्स पे जो टारगेट कैलकुलेशंस और मल्टीपल्स आएंगे वो बाद में बताता हूँ. सारी अच्छी बातें हो गई. अब मैं थोड़ा सा 1-2 निगेटिव चीजें पे आता हूँ. तो ये जो मैंने आपको एक प्रोसीजर बनाया था कि कैसे एक सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चर होता है, उसमें 5 स्टेप्स मैंने बताया. पॉलीसिलिकॉन है, फिर इनगॉट है, फिर वेफर है, फिर सेल है, मॉड्यूल है. ये करंटली लास्ट के 2 चीजें बना रहे, सेल और मॉड्यूल. ये वेफर में ऑलरेडी जा रहे हैं. इनके जो प्लान है वो बहुत फिक्स है, मतलब वो हो चुके हैं, और इनगॉट ये इवेल्युएट कर रहे हैं. बट द थिंग इज पॉलीसिलिकॉन इज स्टिल टू बी इंपोर्टेड फ्रॉम द यूएसए, सॉरी द चाइना. तो एनी डिसरप्शंस इन द इंपोर्ट ऑफ पॉलीसिलिकॉन कैन बी वेरी बैड फॉर द कंपनी. और एक चीज ऐसी होती है कि कोई भी इंडस्ट्री अगर बूम में हो तो चाइना इज ऑलवेज नोन टू पोक देयर नोज. ओके, अगर चाइना ने कुछ एक्सपोर्ट ड्यूटीज वगैरह लगा दी या फिर कुछ टेंशन हो गए तो इट कैन बी वेरी डेंजरस फॉर द कंपनीज. तो मैंने जो इसको मल्टीपल दिया कि आई गिव इट अ 30 टाइम्स मल्टीपल ऑफ 20 रेवेन्यू. तो मेरा प्राइस अगर थोड़ा बहुत ज्यादा लगता है, बट आई थिंक बहुत रीजनेबल है. वो 1460 का मेरा टारगेट प्राइस निकल के आ रहा है, मतलब फेयर वैल्यू जो निकल के आ रहा है इसका. तो उसका करीब अपसाइड निकलता है 224% अराउंड,
1460, अब 450 का इशू प्राइस है। तो क्या है अभी ये जो भी फैसिलिटी लगा रहे हैं ना, नहीं, इसमें से अभी अराउंड आईपीओ से ये 1100 करोड़ खर्चा करेंगे, और ये अभी 2200 करोड़ आयरेडा से लोन लेने वाले ऑलरेडी, आई थिंक साइन कर लिया। आयरेडा से ये 2200 करोड़ लेंगे, तो इनका जो नेट डेट है ना, वो एक्चुअली अगले 1.5 साल में अराउंड अराउंड 5 to 6 thousand करोड़ हो जाएगा। तो वो इंटरेस्ट कॉस्ट थोड़ा हेवी रहेगा कंपनी के लिए। सो नेट नेट में मैं अभी जस्ट एंकर बुक पे आया 15 मिनट पहले, बहुत अच्छे नाम थे, ब्लैक रॉक, कोटक, मॉर्गन स्टैनली, सोसाइटी जनरल, फिर एनएचआईटी था, था, बहुत अच्छे अच्छे नाम्स थे। बीएनपी पारिबास हो गया आपका, टाटा हो गया, सुंदरम, न्यूबर्ग, न्यूबर्जर बर्गमैन, कोटक, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, तो नाम भी बहुत अच्छे थे। सो ऑल इन ऑल आई से कि ऐसी इट इज अ वन ऑफ अ काइंड लिस्टिंग ना, वन में से कि यार बारी आएगा थोड़े टाइम में, बट अभी तक तो नहीं आया है। अब करेंटली इंडियन मार्केट्स में इट्स अ वन ऑफ अ काइंड लिस्टिंग, और बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स इसके। और एक चीज की प्राइवेट इक्विटी फंड पूरा एग्जिट नहीं ले रहा है। एंड वन थिंग आई लाइक टू एड इज 2 days ago they did a secondary placement of around 920 crores, which was which was not included in the IPO। 900 करोड़ के इन्होंने अलग प्लेसमेंट किया है। उसमें कौन म्यूचुअल फंड, एक्सिस, कोटक और एक्सिस, चारों ने मिलकर 100 करोड़ लिया, और बहुत सारे एंटिटीज और अराउंड 30 HNI इंडिविजुअल्स है। तो ऑल इन ऑल मतलब बहुत अच्छा लग रहा है ये मुझे। तो मतलब लगता है कि लिस्टिंग पे यार 4 डिजिट निकल जाएगा, 1000 रुपये लिस्टिंग पे आना चाहिए, और बाद में भी बहुत अच्छा लगेगा। सो ओवरऑल बहुत बुलिश हूँ मैं इसके ऊपर। अच्छा लग रहा है सब कुछ। मतलब निगेटिव्स तो सिर्फ दो ही है, चाइना का एक्सपोजर और पॉलीसिलिकॉन का डिस्ट्रप्शन, बाकी तो कुछ नहीं दिख रहा है। बहुत अच्छा इशू है। मतलब क्या होता है वो, हर जहां जैसे भी अप्लाई कर सकते करो, बहुत अच्छा इशू है, बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट है इसके। Thanks, Tanmay, for covering that. I'll kind of agree and kind of add a couple of things on this. जैसे कि यूजुअली क्या होता है मार्केट में ना, कंपैरेटिवली थोड़ा बहुत माहौल बनता रहता है कि ये आईपीओ आएगा, ये इतनी साइज का आईपीओ होगा, ये आईपीओ होगा। दिस वाज वन आईपीओ वेयर दे न्यू दैट दे डिडंट हैव टू डू एनीथिंग। इट वाज सच अ lucrative deal that probably nobody in the industry knew. किसी को भी पता नहीं था कि ये आईपीओ आने वाला है, and then it suddenly hit. So that kind of talks a lot about the kind of secrecy this IPO has went through, and again, very hot in terms of the market. Seems that there's a lot left on the table as well. So definitely very interesting issue. Rohit, do you have anything to add on प्रीमियर? बाय द वे, बिफोर वी गो फॉरवर्ड, हम अभी प्रीमियर एनर्जीज की बात कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमें एक ये कमेंट मिला था कि कीप टॉकिंग अबाउट द नेम ऑफ द कंपनी, बिकॉज लोग बीच बीच में बात करते हैं। सो राइट नाउ व्हाट वी स्पोक अबाउट वाज प्रीमियर एनर्जीज, and we'll kind of do that slightly more regularly. So Tanmay and Rohit, this is for you guys. But Rohit, do you want to add anything on Premier Energies? I think Tanmay has covered it extensively. I'll just say one thing here. I mean, I have seen one or two reviews where people have, given a not neutral view, but a view saying it is expensive, 60p and so on. I mean, this is precisely the kind of business where you have to calculate forward multiples. The entire market will work on forward earnings here. I think this company is coming very, very cheap. They've left a lot on the table. I completely agree with what Tanmay's expected upside is. I too feel there will be upside like this. And there will be a very, very good chance of getting allotment. I think I'll just, like in my estimations, I'm guessing that BHNI will be subscribed around 8 times on an application basis. So people who can apply BHNI apps from as many accounts as possible, you guys should. This will be a phenomenal IPO to get allotment and to get, extremely good listing gains. And if you're lucky, we might even be able to buy after listing at a price that is, can still give more upside. So yeah, that's my overall read. Perfect. I'll take 1 minute on the valuation side. Tanmay, go on. हाँ, तो मतलब ना जब ये आईपीओ आया था ना यार, कि लोगों ने कहा था कि यार वैल्यूएशन बहुत महंगा। मतलब जब जो लोग मेरे को फॉलो करते हैं उनको मालूम है कि मेरा भी प्राइसिंग एक्सपेक्टेशन 440 रुपीज था। मतलब जब नया आईपीओ डिक्लेयर होता है, सेट 440 आना चाहिए, 450 आया था। तो बहुत क्लोज, मतलब जो एक्सपेक्ट कर रहा था मैं, वैसा ही प्राइस बैंड आया था। तो ना जब ये डिक्लेयर हुआ, लोग बोल रहे थे कि 87 के मल्टीपल पे आ रहा है, FY23 वाज द लॉस। तो मैं ना उनको एक बोलूंगा कि यार अपना FY25 का जैसे प्रोजेक्शन देखो, मतलब ये कर रहा है जंप, आपका 220 करोड़ से 1270 करोड़ का प्रॉफिट जंप ले रहा है। मतलब 87 टाइम्स ऑन FY24
एंड लिटरली 16 टाइम्स ऑन FY25। मतलब ये कंपनी आज 20,000 करोड़ के मार्केट कैप पे मिल रहा है। आई फील लिस्टिंग पे आपको 45 पे दिख जाएगा, और मैं बोल रहा हूँ लिस्टिंग से भी दुगना हो जाएगा ये। और लोग मार्केट कैप खेलते बैठेंगे, उनका वो हाथ से निकल जाएगा। सो आई आई फील लाइक मस्ट अप्लाई यार, मतलब सब चीज लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा लिस्ट होगा ये। सर मैं एक बार पीयर्स की बात करोगे क्या, कि पीयर्स कौन कौन होंगे एंड वेयर आर यार दे कुछ परसेंट? नहीं, आरएचपी में उन्होंने वेबसॉल दिया है, बट क्या है वो 10 साल से कंपनी डेड थी, अभी उन्होंने एक क्वार्टर डिलीवर किया है। तो और वो कैपेसिटी तो बहुत ही, मतलब ये उसे आई थिंक 15-20 गुना ज्यादा कैपेसिटी लेकर बैठा है। और ये तो मैं करंट कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ, मैं फॉरवर्ड कैपेसिटी पे आएगा तो फिर वो तो मतलब बहुत ही परसेंटेज, सिंगल डिजिट परसेंटेज पे आ जाएगा वेबसॉल इसके सामने। इसका तो एक्चुअली पीयर है ना, अनलिस्टेड में सर विक्रम कर सकते हो आप, मुंद्रा सोलर हो सकता है, वारी भी पार्शियली हो जाएगा। बट ना द थिंग इज लाइक ये कंपनी का भी बैकवर्ड इंटीग्रेशन बहुत स्ट्रांग हो रहा है। यूएस में ये नंबर 1 है। ओके, जो दूसरा प्लेयर ना यूएस को सप्लाई करता है, मैं नाम नहीं लूंगा, उससे ये आई थिंक 3 गुना बड़ा है। तो इसका कंपैरिजन ना बहुत अलग है। और एक चीज बोलूंगा मैं, इसका प्रमोटर होल्डिंग पोस्ट आईपीओ भी अराउंड अराउंड 58 माइनस अभी ढाई किया तो 59.6% होगा। और इनके साथ और एक जो जेवी अपना ये प्राइवेट इक्विटी पार्टनर एंड जीएफ कैपिटल, तो ये एक ना ईएसजी फंड है। इट्स नॉट अ नॉर्मल पी फंड, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल ग्रोथ, वो ईएसजी वाला फंड है, ब्रिटेन का फंड ही है, सॉरी वॉशिंगटन डीसी का फंड है। तो ये कंपनी के ना टाइप्स बहुत स्ट्रांग है, मतलब पूरे दुनिया के बड़े बड़े रॉ मटेरियल सप्लायर्स, सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स, ईपीसी प्लेयर्स बहुत स्ट्रांग है। तो ये सब देख के मुझे लगता है कि ये कंपनी का जो क्वालिटी है ना, स्टैंड आउट करता है। लिस्टेड में तो ऑनेस्टली कोई कंपैरिजन नहीं है। इंसोलेशन हो रही है ना, बिल्कुल नहीं लगेगा, कोई सोचो भी मत कि ये वैल्यूएशन लग सकता है। और एक चीज बोलूंगा कि ये कंपनी ऐसा है नहीं कि सिर्फ वो एक यार मैन्युफैक्चर कर रहा है मॉड्यूल वॉड्यूल। अराउंड इनका 78% वहां से आता है, एपीसी में भी है ये, और आईपीपी में भी है। एपीपी में बहुत छोटा रेवेन्यू आता है, बट ईपीसी में भी है ये। मतलब सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल है। चाइना का डिस्ट्रप्शन छोड़ दे तो मुझे इनके बिजनेस मॉडल में से कोई दिक्कत लगता नहीं। अगले 3 से 4 साल के लिए बहुत अच्छी कंपनी है। गॉट इट, दैट वाज आवर रीड ऑफ प्रीमियर एनर्जीज। में भी अब हमने काफी टाइम प्रीमियर एनर्जीज पे बात कर लिया है, सो विल गो ऑन। आई जस्ट वांट टू हाईलाइट कि अगर आप में से किसी ने भी ये मिस किया है, तो गो फॉरवर्ड, गो अहेड। मैंने पिंड कमेंट्स में ना यूट्यूब चैनल डाल रखा है, उस पर हम अपना रिकॉर्डिंग डालते हैं एंड उसको वहां पे पोस्ट करते हैं। सो गो अहेड एंड फॉलो द चैनल। आपको कल सुबह ये जो रिकॉर्डेड स्पेस है वहां पे मिल जाएगा, और वहां पे हम टैग कर देते हैं, तो यू कैन लिसन टू दैट स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द issue and probably listen to it closer to while you are still applying for the issue. With that, maybe and if you guys have any questions with respect to the issues that we are talking, keep posting them in the questions, we'll take them. मेरे को जो एक क्वेश्चन दिख रहा है वो ये है कि it's a capital heavy industry, so what will be the impact on future cash flows? So as तन्मय currently mentioned कि interest rate थोड़ा सा comparatively ज्यादा रह सकता है, तो उसकी वजह से थोड़ा इंटरेस्ट इनको ज्यादा पे करना पड़ेगा, बट इवन आफ्टर कीपिंग दोस कैलकुलेशंस द कंपनी सीम्स टू बी डूइंग वेरी वेल। Any more questions? I'm just searching if there are any more questions with respect to Premier Energies, or we can kind of move ahead. Rohit, by any chance, have you calculated retail subscription? Any idea you think on Premier Energies? What? Or Tanmay, maybe any of you guys have an update on that or rough idea? यार मैंने बिग एच एन ज्यादा कैलकुलेशंस करी यार तो रफ रफ में मेरा फिगर निकल के आ रहा है कि ये सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। 1,25,000 एप्लीकेशन आ जाएगी इसके ऊपर, 1:9 का रेशो निकलेगा। और रिटेल में भी अच्छे खासे एप्लीकेशन आएंगे यार, मतलब सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा एपीओ। आई फील बजाज से भी ऊपर जाएगा, मतलब जो फ्यूचर में बजाज जाएगा उससे ज्यादा एप्लीकेशन रहेंगी, तो एप्लीकेशन की थोड़ी मारामारी रहेगी इसमें। Got it. Let's see. I still think कि Bajaj will kind of clock more big HNI applications because that's a much bigger name. It would be very similar to like you at Tata Tech and IREDA. उसका comparable यहाँ पे आप in a way कर सकते हो. It would be Bajaj Housing Finance and your Premier Energies. But having said that, maybe now we will move forward to the next issue and start talking about the second company, which is Ecos Mobility. सो इस कंपनी के बारे में बहुत ही बेसिक हाई लेवल पे बात बता दूं। सो कंपनी अराउंड 600 CR मार्केट से आईपीओ कर रही है। ये पूरा आईपीओ जो है वो
ऑफर फॉर सेल है, यानी कि कंपनी के पास बिल्कुल पैसा नहीं जाने वाला है। कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो कैश आउट कर रहे हैं, उनने कंपनी की वैल्यूएशन निकाली है लगभग 2000 करोड़ रुपए, तो वो 600 करोड़ कंपनी से निकाल रहे हैं, यानी जो कंपनी में से 30% अपनी मालिकाना हक है वो दूसरे इन्वेस्टर्स को, आईपीओ इन्वेस्टर्स को ला रहे हैं, एंड दे विल कंटिन्यू टू होल्ड, प्रमोटर ग्रुप विल कंटिन्यू टू होल्ड लाइक 67% ऑफ द कंपनी। वेरी हाई लेवल पे अगर मैं कंपनी बताऊं क्या करती है, तो इट्स अ न्यू दिल्ली बेस्ड हेडक्वार्टर्ड कंपनी, वेरी ओल्ड कंपनी, 30 years old company, and is majorly in the CCR, chauffeured car rental segment, and the ETS segment, employee transportation services segment. So basically इनका मतलब समझाऊं तो मैं, ड्राइवर जो, so basically कैब्स वगैरह होती हैं जो कॉर्पोरेट्स को देते हैं, so इट्स ना B2B2C सेगमेंट। बेसिकली उसका मतलब क्या हुआ कि ये ना MNCs वगैरह के साथ टाई अप करते हैं, और उनके जब एम्प्लॉइज वगैरह ऑफिस जाते हैं तो उनको ऑफिस लेके जाता है और फिर ड्रॉप करके आता है। सो दैट्स द ETS सेगमेंट, एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट। और जो दूसरा सेगमेंट है वो है कि जब उनके कोई गेस्ट आते हैं और कंपनीज के, या फिर कोई सेमिनार्स होते हैं, उसके लिए उनको शॉफर ड्रिवन गाड़ियां चाहिए होती हैं, ड्राइवर ड्रिवन गाड़ियां चाहिए होती हैं, तो उसको बोलते हैं CCR, शॉफर्ड कार रेंटल सर्विस, उसमें से वो काम करती है। सो अगर आप FY24 का कंपनी का धंधा देखोगे तो अराउंड 43% जो बिजनेस है वो CCR, शॉफर्ड कार रेंटल से आता है, और 54% जो बिजनेस है वो एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज से आता है। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ इस सेगमेंट में, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी, एंड कई सारी मल्टीपल MNCs और कॉर्पोरेट्स के साथ काम करती है, जैसे कि इंडिगो हो गया, HCL हो गया, डिलॉइट हो गया। और कंपनी इनफैक्ट जो G20 समिट हुआ था दिल्ली में, उसमें भी इनने अपनी कार्स वगैरह दी थी। सो काफी, क्योंकि ये कॉर्पोरेट्स के साथ क्लाइंट्स के साथ काम करती है, तो वहां पे ना एक स्पेसिफिक पेक्यूलियर फीचर होता है कि ये थोड़े से प्राइस को लेके इंसेंसिटिव होते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी इतनी ज्यादा नहीं रहती, क्योंकि अपन क्या करते हैं, जब हम ओला उबर करने जाएं तो हम हर बार प्राइस चेक करते हैं कि कहाँ पे सस्ती मिल रही है, वो बुक करते हैं। वर्सेस अगर कंपनी एक बार ऑनबोर्ड कर लेती है किसी वेंडर को, तो फिर वो इतना प्राइस के लिए नहीं देखते। सो इट्स अ गुड part for the company that the company can continue to enjoy longer term duration contracts and slightly higher margin than your B2Cs of the world. इनफैक्ट इसके आप देखोगे तो पिछले 5 साल से ज्यादा पुराने क्लाइंट जो है वो लगभग 60% जो क्लाइंट है वो 5 साल से ज्यादा से काम करते आ रहे हैं, विच इज अ गुड पार्ट। एंड स्पेशली ये जो सेक्टर है काफी नया सेक्टर है, ऐसी कोई लिस्टेड कंपनी है नहीं, एटलीस्ट ऑन द मेन बोर्ड। SME साइड पे 2 लिस्टेड कंपनी है जो मैं बाद में बताता हूँ, बट मेन बोर्ड पे ऐसी कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है। ये मैं इको मोबिलिटी की बात कर रहा हूँ, जस्ट सो इफ समवन हैज जॉइंड न्यू। बट ये जो कंपनी है बेसिकली जैसे जैसे इंडिया में नए ऑफिसेज बन रहे हैं और जो GCCs बन रहे हैं, जो COE बन रहे हैं जिनको बोलते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, बेसिकली US वगैरह की कंपनी अपना ऑफशोर सेंटर खोलती है, तो वो क्या करते हैं, कंपनी के एम्प्लॉइज को ट्रांसपोर्टेशन वगैरह देते हैं। तो जैसे जैसे वो कंपनीज बढ़ेंगी वैसे वैसे ये इको मोबिलिटी का धंधा बढ़ेगा, और वो जो GCCs हैं या COEs हैं वो बढ़ने ही है। लाइक FY22 में वो 1500 थे, और FY2030 में अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट दे विल बिकम 2500। तो जैसे जैसे वो होगा इस कंपनी को भी उसका टेलविंड मिलेगा, क्योंकि ये सबसे बड़ी कंपनी है इस सेगमेंट की। अब अगर मैं बात करूं कि कंपनी का स्केल क्या है, तो कंपनी इस स्केल पे काम करती है कि वो लगभग 31 लाख ट्रिप की थी उनने पिछले साल में, विच कम्स टू लाइक 8400 ट्रिप्स एवरी डे, विच इज अ बिग सेगमेंट। और कंपनी के कई सारे आउटसाइड इंडिया वेंडर्स पार्टनर्स भी है, नेटवर्क पार्टनर्स। तो अगर जैसे यहाँ की इंडिया की कोई कंपनी जैसे इंडिगो हो गई, उनको अपने एम्प्लॉय को कहीं लेट्स से दुबई में अगर कैब दिलानी है, तो वो यहाँ से कंपनी उनसे भी कांटेक्ट करा के चलती है। उसके बाद एक बहुत अच्छी बात जो इस कंपनी की वो ये है कि वो ये एसेट लाइट मॉडल में काम करते हैं। मतलब बेसिकली कंपनी की बुक्स पे जो कैब्स होती हैं वो कंपनी की नहीं है, वो उनने एक वेंडर के थ्रू लगा रखी हैं कैब्स, और वेंडर की कैब्स हैं, कंपनी बस उनको ऑपरेट करती है। सो लाइक इट्स कंपनी हैज लाइक 5 to 7% ऑफ द कैब्स ऑन देयर ओन, एंड बाकी जो 94% ऑफ द कैब्स हैं वो पूरी वेंडर की तरफ से हैं। और अगर कंपनी की आप बात करोगे तो टॉप लाइन और बॉटम लाइन भी काफी अच्छे से ग्रो हो रही है ओवर द लास्ट 3 years। कंपनी का FY22 का जो टॉप लाइन था वो 151 करोड़ था, और FY24 का टॉप लाइन 568 CR था। सो 4x जंप है, बट उसमें अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो FY22 का है उसमें कोविड का इम्पैक्ट था, क्योंकि कोविड की वजह से क्या है सब ट्रैवल वगैरह बंद हो गया था, तो उनका जो रेवेन्यू है अचानक से बहुत कम हो गया था। बट उसके बाद वो नॉर्मल लेवल पे आया, तो कंपैरेटिवली कंपनी धीरे धीरे ग्रो करेगी। अब इसी तेजी से नहीं ग्रो करेगी, बट इट्स अ गुड कंपनी एंड हैज बीन ग्रोइंग सिंपली बिकॉज द सेगमेंट, द
cake has been increasing because there are a lot more companies which are going in. उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो कंपनी ने अभी 62 सीआर पैट बनाया, 11% पैट मार्जिन, जो कि हायर है इन द इंडस्ट्री. अब अगर मैं पीएस की बात करूं तो कंपनी ने 2 लिस्टेड पीयर बताए हैं जो कि एसएमई सेगमेंट में, मुझे नहीं लगता वो कंपैरेबल पीएस है. वो है WTI कैप्स एंड श्री OSFM. और दोनों की स्केल बहुत छोटी है. जैसे ये कंपनी वैल्यूएशन ला रही है 2000 करोड़ पे. WTI कैप्स अराउंड 700 सीआर है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड श्री OSFM इज लाइक 250 सीआर. सो अगेन वेरी स्मॉल. बट ये जो कंपनी है ये 32 पीई पे आ रही है. जो अपनी इको मोबिलिटी है ये 32 पे आ रही है. और वहीं अगर आप WTI कैप्स और श्री OSFM देखोगे तो वो अभी कुछ 4-5 दिन पहले तक 25 पीई पे थे. अभी उनको क्योंकि ये इको का नाम आ गया तो, और ये 32 पीई पे है, तो मार्केट ने उसको, उन दोनों को भी खींच दिया. जैसे आज WTI कैप्स 8% बढ़ा था, मैं देख रहा था. सो वो दोनों भी 32-33 पीई पे आ गई हैं. सो उस टर्म्स में अभी तक मैंने सब अच्छी बातें बोली, बट उस टर्म्स में मेरे को जो लगता है कंपनी ने बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं छोड़ी है ऑन IPO, ऑन इन टर्म्स ऑफ लाइक फॉर द इन्वेस्टर्स. काफी कुछ प्राइस्ड इन है. आई नो यहाँ पे हम तीनों इस बारे में बात कर रहे थे, हम तीनों का काफी अलग ओपिनियन था, बट एटलीस्ट माई ओपिनियन वॉज दैट there's a lot already priced in the company. It's a good company. कंपनी ग्रो भी करती रहेगी, बट एट दिस प्राइस इट्स स्लाइटली प्राइस्ड इन. बट हैविंग सेड दैट, ऐसी कोई कंपनी मेन बोर्ड पे एटलीस्ट है नहीं, तो नोवेल्टी फैक्टर्स की वजह से हो सकता है मार्केट इसको प्रीमियम दे. और कंपैरेटिवली ना साइज कम है, 2000 करोड़ की कंपनी है. सो दैट वाज माय वेरी हाई लेवल रीड. परसों को लेगी तो इसलिए एंकर बुक अभी आई नहीं है. एंकर बुक कल आएगी, उससे भी थोड़ा आइडिया लगेगा. बट हैविंग सेड दैट, इट्स 100% OFS, 100% ऑफर फॉर सेल है. कंपनी में कोई भी ग्रोथ कैपिटल नहीं जा रहा है. कंपनी बेसिकली ये जो पैसा है वो पूरा प्रमोटर्स कैश आउट कर रहे हैं. So that was my read. Over to you, Tanmay and Rohit. I know, Tanmay, you felt there is some value still left, so maybe you want to go first and talk at a very high level with respect to Ecos. यस, I'll just go on two things कि यार आईपीओ पूरा ओएफएस क्यों है, और दूसरा मैं वैल्यूएशन पे आऊंगा. पहली बात ना, ये जो बिजनेस होता है ना, पहली बात तो ये एसेट लाइट मॉडल पे है. मतलब इनका 92.5% जो फ्लीट है 12,000 गाड़ियों का, वो कंप्लीटली वेंडर ड्रिवन है. मतलब ये आउटसोर्स करते हैं. और इनका सिर्फ 7.5% जो फ्लीट है वो खुद का है. तो हाईली कैश जनरेटिंग बिजनेस है, एसेट लाइट मॉडल है, हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस है. और अपन ने बात की कि 1997 का आई थिंक कंपनी, बट ये एक्चुअली 1972 में स्टार्ट हुई थी कंपनी. मतलब एक रिटायर्ड आर्मी अफसर थे, उन्होंने स्टार्ट करी कंपनी फ्रॉम ड्राइविंग वन कार, वो भी खुद चला के नोएडा में. आज ये इतनी गाड़ियों पे, और इनका स्केल आप 30 देशों में है आज. और मैं वैल्यूएशन पे आऊंगा तो ये साल ये इन्होंने आई थिंक 64-65 करोड़ कुछ बनाया. अगले साल का जो मेरा एक्सपेक्टेशन निकल रहा है अराउंड 85-87 करोड़ बनाएंगे, जो बहुत रीजनेबल है. तो उसके हिसाब से 2000 करोड़ के मार्केट कैप है, 22-24 का मल्टीपल इज नॉट वेरी हाई. बट क्या है, देखो ये ना इंडिया में नंबर वन और अनबीटन नंबर वन है. अगले 3 साल में कोई कंपनी कितना भी फंड ले ले, कितना भी कैपेक्स कर ले, कुछ भी कर ले, इनको बीट अगले 3 साल तो नहीं कर पाएगी. जो दूसरा प्लेयर हो इनसे 60% छोटा है, मतलब ये दुगना है. ये नंबर 2 प्लेयर से दुगने से बड़े. और तीसरी चीज ना, ये ना यार, ये पैसेंजर कार ये इसमें नहीं है. मतलब ये इसमें भी है एम्प्लॉयमेंट, जो ERS इनका सेगमेंट है ना, इसमें ये सेडान्स वगैरह करते हैं. इनके पास BMW, मर्सिडीज, मतलब लिटरली इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी जी भी बैठे इनकी गाड़ियों में. तो इनका जो है ना सब यार, बहुत हाई लेवल का काम है बहुत. और उनके क्लाइंटेल भी बहुत सॉलिड है, लॉन्ग रिलेशनशिप से. मैंने प्रमोटर्स भी देखे, बहुत क्लीन प्रमोटर्स है, ऑनेस्ट प्रमोटर्स है. तो मतलब मेरे लिए तो टेबल पे जगह है. मेरे को इसमें 40% तो क्लियर दिखता है लिस्टिंग पे ऑनेस्टली. और मेरे को सब अच्छा लगा. मतलब क्या होता है, अभी मैं प्रीमियर की बात करूं तो मेरे को मालूम है कि वार एक बार आ गया तो प्रीमियर का थोड़ा जो वैल्यूएशन का जो प्रीमियम वो कम आ जाएगा. बट इसका कोई नहीं आने वाला. ये कंपनी अनबीटनली नंबर 1 रहेगी और ये ग्रो करती रहेगी. और ये एक ऐसा सेगमेंट है जो अगले 5 साल 30%, 25% CAGR से बढ़ सकता है. तो ये जो सेगमेंट होते हैं ना 25-30% वाले, इनको ऑलरेडी मार्केट बहुत हाई प्रीमियम देता है. मतलब ये पोस्ट पी पे 40-50 के भी मल्टीपल, मतलब यहाँ से दुगना भी लिस्ट हो जाए, आई विल नॉट बी वेरी सरप्राइज्ड ऑन दिस. Got it. That's the beauty, right? We can continue to debate. I really feel कि there are other players. If anything, मैं ये देख रहा था कि इसका मार्जिन 11% है, जो other players है उनका 7% है. तो other players have more room to cover. इसका already 11% है. But having said that, I understand we can have different ये points. तब तक तेरा पहुंचेगी सर. Okay, let's see.
उस हिसाब से देखते हैं. बट दैट्स आर रीड ऑफ इको मोबिलिटी. मे बी वी कैन नाउ मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट इशू. इको मोबिलिटी की हमने बात कर ली. सो इसके साथ हमने दो मेन बोर्ड की बात कर ली है. अब हम एसएमई के वर्ल्ड की तरफ चलते हैं और सबसे पहले मे बी रैपिड मल्टी मॉडल की बात करते हैं. चेन्नई बेस्ड लॉजिस्टिक्स कंपनी है, B2B सेगमेंट में ऑपरेट करती है. रोहित, डू यू वांट टू गो अहेड एंड टॉक अबाउट रैपिड मल्टी मॉडल? Yeah, I'll cover this one a little quickly because I'm quite neutral on this, so I don't want to spend too much time. As Manish said, this is an asset-light logistics solutions provider. So they basically manage and coordinate whatever movement of goods that their client wants from the origin to the destination. So let's say there's a ceramic manufacturer in Gujarat who wants to get gypsum from, say, Rajasthan and export the finished tiles to, say, East India. They will get the gypsum. They will put it on trucks. They will put it on into, cargo trains, get it to their factory, to the endpoint. Once the product is finished, they will then figure out how to, again, through a combination of road and rail, get it to the end consumer, say, who's in Orissa. That is what they do. They are primarily in domestic only. So essentially essentially logistics means road and rail. So when they say rapid multimodal, there is only two modes, which is road and rail. Air and ship and all does not feature only in the Indian domestic logistics scene. And they are focused, and about 50% of their business comes from road and rail respectively. They work across many different, categories: glass, plywood, oil, gypsum. I mean, just the who's who of industries that you will find in India. Their growth, I would say, has not been that great. I think this year they actually degrew a little. They said that this is because there was sudden increase in railway tariff by 10%, and that shock is now being absorbed. So FY25 will be fine. But at the end of the day, a business showing degrowth, with like a very, very thin margin kind of business, inherently is not super attractive. So perhaps next year, if they're able to start showing some increase in numbers, it could turn out to be a little more interesting. This year, they did 72 crore revenue, 2 crore PAT. That is hardly 2.5-3% PAT, despite being a services asset-like kind of business, which shows that this is a very competitive and low margin business. There's not enough value add. The cash flows, the balance sheet, cash flows, receivables are okay. They're nothing to write home about. The only thing is the company's claiming that next year they are all set to grow 50% because whatever issues were there are behind them. So that is the play if someone feels that they like the sector and like the fact that they're asset light and they want to take a bet. The promoters also seemed all right. They were quite articulate. They could explain what they wanted to do quite well in whatever interviews I could see. Business is coming at 18p. Again, don't see a lot on the table. Very, very high quality, high growth logistics business, 3PL businesses. When you look at air and ship and all, you see them at 30-35p. But purely a road, rail, low growth, very low margin kind of business, I don't see why it will get more than 20p. It's a small issue, only 8 crore raise, 32 crore market cap. So there's a chance of it being gamed. But beyond that, I don't see anything in the immediate term as well. And if one is interested in the sector, you can track and see if they're able to execute based on what they're saying. They're saying they'll grow 50% year on year. And if they're able to execute and you're interested in the sector, you can take a bet. But I personally am very neutral on this, and can't really recommend this, for myself or for anyone. थैंक्स रोहित. इस बार हमने ये डिसाइड किया था कि रोहित को बेकार कंपनियां देंगे पढ़ने के लिए और हमने अच्छी कंपनी ले ली थी. सो बट या रैपिड मल्टी मॉडल इज क्लोजिंग टुमारो. इट्स द ओनली आईपीओ विच इज क्लोजिंग टुमारो एंड इसके जो फंड्स हैं वो 29 को अवेलेबल होंगे. सो इसकी वजह से भी हो सकता है कि इसमें आपको ज्यादा सब्सक्रिप्शन देखने मिले, जैसे कि आज मिला. आज काफी ज्यादा एक सब्सक्राइब इशू था रिसोर्सफुल. But having said that, we'll kind of move on in the interest of time also, move on to the next company, which is VDL. VDL, और इनफैक्ट अब जो अगली दो कंपनियां हैं वो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की हैं. सो पावर सेक्टर से रिलेटेड हैं. दोनों काफी टेलविंड्स हैं सेक्टर में. सो मे बी पहले VDL की बात करेंगे, फिर JB लेमिनेशन की बात करेंगे. हमने रोहित को एक अच्छी कंपनी दी है, सो ही विल गेट टू स्पीक अबाउट JB लेमिनेशन. बट हैविंग सेड दैट, आई विल काइंड ऑफ वेरी क्विकली टॉक अबाउट VDL सिस्टम्स फर्स्ट. लगभग 18 करोड़ रुपए का आईपीओ है. सब फ्रेश इशू है, 0 OFS है. और कंपनी जो है वो लगभग 54 CR के मार्केट कैप पे आ रही है. सो काफी छोटा इशू है. 50 करोड़ की कंपनी है. अब अगर मैं बात करूं कंपनी करती क्या है, तो कंपनी भुवनेश्वर बेस्ड है और कंपनी ना इलेक्ट्रिकल पैनल्स बनाती है और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सॉल्यूशंस बनाती है टू स्मार्टिफाई दीज पैनल्स.
मतलब बेसिकली क्या होता है कि जैसे फैक्ट्रीज में वगैरह ना आपको एक टेम्परेचर तक ही किसी चीज को गर्म करना पड़ता है या इतना टाइम ही कुछ करना पड़ता है, तो उस हिसाब से पैनल्स ऑटो कट ऑफ हो जाएं, उस वाले जो सॉल्यूशंस होते हैं वो और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सॉल्यूशंस जो है वो ये कंपनी बनाती है, और पैनल्स बनाती है, और पैनल्स भी तरह तरह के बनाती है। सो ऐसी कंपनियां काफी लिस्ट हो चुकी हैं ऑफ लेट। आई रिमेम्बर शिवालिक आई थी एक कंपनी अभी अभी 1-2 महीने पहले, सो इट्स वेरी सिमिलर टू आई फील शिवालिक। इफ एनीथिंग दे डू slightly different and but it's a much smaller in size compared to शिवालिक। और कंपनी जो है वही सनराइज इंडस्ट्री में है, बहुत सारा पावर कैपेक्स हो रहा है गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेयर्स की तरफ से। और जो कंपनी के फाउंडर हैं वो धीरज कोचर है। ही हैज डन हिज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सो अगेन वेरी रिलेवेंट टू व्हाट ही इज डूइंग फ्रॉम एनआईटी सूरतकल इन 2000, and then has had relevant industrial work ex. He has been working in this company in the last 14 years. उनने पहले एक स्वास्तिक करके एक एलएलपी बनाई थी, फिर उसके बाद वीडील को खरीदा और फिर अपनी पूरी कंपनी का मर्ज नाम वीडील कर दिया। So that's how the company has started. और कंपनी मेजरली दो प्रकार के बिजनेसेस करती है, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग इज लाइक 60% ऑफ बिजनेस एंड ट्रेडिंग इज 40%। बट जो ट्रेडिंग है वो एक्चुअली ट्रेडिंग उन्होंने लिखा है ट्रेडिंग सेल्स, बट इट इज नॉट रियली ट्रेडिंग। वो बेसिकली क्या होता है, कंपनी ना अपने पैनल्स वगैरह बनाती है तो उसके कुछ स्पेयर पार्ट्स वगैरह चाहिए होते हैं, जब वो खराब हो जाते हैं तो उसको जब वो देते हैं तो उसको उन्होंने ट्रेडिंग में क्लासिफाई किया है, which is okay, which essentially should not have that low of a margin which you will think, which you will associate with a trading business, क्योंकि वो यही लोग प्लेयर हैं, स्पेशलाइज्ड प्लेयर हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग के बाद में जब पार्ट चाहिए तो वो दे रहे हैं। तो इसलिए आई फील दैट जस्ट अ क्लासिफिकेशन। बट इफ आई टॉक अबाउट मेजरली दे हैव 3 प्रोडक्ट कैटेगरीज। जो अगर हम बात करें, जो मैंने सबसे बोला, पैनल्स बनाते हैं ये, एलवी भी बनाते हैं, एमवीवी लो वोल्टेज भी बनाते हैं और एमवीवी बनाते हैं, और लगभग 53% जो धंधा है वो इससे आता है। बट ये जो धंधा है ना, ये लगभग मतलब ये कंपनी ने 28 सीआर का रेवेन्यू किया था, तो अराउंड 14 सीआर का रेवेन्यू ना FY24 में इससे आया। पर आप देखोगे तो वो उतना ही चल रहा है। FY22 में भी 11 करोड़ किया था, FY23 में भी 12 करोड़ किया था। अगेन नंबर थोड़े से हिल सकते हैं मैंने बट काफी स्टेगनेंट बिजनेस है ये वाला। 50% जो धंधा ये बढ़ नहीं रहा। इनफैक्ट कंपनी के पास जो कैपेसिटी है ना वो 70 करोड़ की है, पर कंपनी कर नहीं पा रही। कैपेसिटी पिछले 3 साल से वही लगभग 20% पे है पैनल्स में। अब अगर मैं दूसरा धंधा जो बात करूं वो है ऑटोमेशन पैनल्स की। दिस इज वेयर द मेजर ब्रिलियंट सेगमेंट इज। तो ये जो सेगमेंट है इसमें जो मैंने बताया कि स्मार्टिफाई करने होते हैं पैनल्स वगैरह, उसके लिए काम होता है। सो दिस इज अ लॉट मोर हाई मार्जिन। पिछले साल इनने इसमें 12 करोड़ का धंधा किया था। आई माइट बी रॉन्ग, 10 या 12, वो आप चेक कर लेना। 10 करोड़ का धंधा किया था, और उससे पिछले साल जो है वो उनने 5 करोड़ का धंधा किया था। तो इसलिए काफी अच्छा जंप आया है इसमें कंपैरेटिवली। 100% कंपनी ने ग्रो किया है रेवेन्यू में, और इनफैक्ट यूटिलाइजेशन इनकी 20 करोड़ की है। हाँ, सो उस हिसाब से इनने 10 करोड़ किया है इस बार। सो 50% यूटिलाइज धंधा, एंड ये ही है जिसकी वजह से ग्रोथ आ रही है पर से सेगमेंट में। एंड ये धंधा कैसे ग्रो होगा, दैट विल डिसाइड हाउ वीडीएल विल गो डू गोइंग फॉरवर्ड। बट हैविंग सेड दैट, मेजर केवियाट, कंपनी जो है वो 100 करोड़ का उनके पास काफी टाइम से कैपेसिटी है, बट कर नहीं पा रही। सो मे बी दिस इज बिकॉज उनके पास ऑर्डर नहीं है। सो ऑर्डर्स मिलना कंपैरेटिवली कंपनी के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। उसके अलावा ये जो बिजनेस है ना, ये मेजरली प्रमोटर ने भी 2-3 बार बोला इंटरव्यूज में, इट इज अ वर्किंग कैपिटल हैवी बिजनेस। कोई आउटराइट मोट नहीं है धंधे का, बट ठीक है, 50 करोड़ की कंपनी है। सो आई डोंट एक्सपेक्ट इट टू हैव अ मोड, बट दिस बिजनेस विल ऑलवेज बी कंस्ट्रेन्ड बाय वर्किंग कैपिटल। तुम्हारे पास जितना तुम कैश रोटेट कर पाओगे उतना धंधा कर पाओगे, एंड वर्किंग कैपिटल्स में ज्यादा चाहिए, क्योंकि कैश तुम 3 बार रोटेट कर सकते हो साल में, क्योंकि वर्किंग कैपिटल टर्नओवर इज 4 मंथ्स। तुम जब एवरेज पेमेंट वापस आएगा तुम्हारे पास, जब तुम ऑर्डर दे दोगे उसके 4 महीने बाद आएगा। सो काफी वर्किंग कैपिटल हैवी इंडस्ट्री है। उसके अलावा कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो छोटी सी बैलेंस शीट है, 27 करोड़ की, बट उसमें से 12.5 करोड़ का ट्रेड रिसीवेबल खड़ा है कंपनी पे, जो कि पिछले साल 6 करोड़ था। तो वो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है कि यार इतना ज्यादा ट्रेड रिसीवेबल क्यों बढ़ गया अचानक से, जबकि उनका जो रेवेन्यू है वो इतना नहीं बढ़ा है। रेवेन्यू 21 करोड़ से 28 करोड़ गया है, या समथिंग लाइक दैट, 21 से 26 गया है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, 26 करोड़। सो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो रिसीवेबल उसी रेशियो में बढ़ता तो 6 से 8 हो जाता, बट 6 से 12 हो गया है रिसीवेबल। सो दैट्स वन स्लाइटली नेगेटिव पार्ट। बट अगर मैं बात करूं कंपनी की टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों ग्रोइंग है। कंपनी ने इस बार 26 करोड़ की है, लास्ट ईयर 20 करोड़ की है।
पैट उनका 3 करोड़ का था। पैट मार्जिन जो है वो 5% से 11% चला गया है, विच सीम्स लाइक कि ये पैट मार्जिन डबल क्यों हो गया। बट रीजनिंग इसका जो है वो है कि हायर मार्जिन ऑर्डर मिले हैं जो उनको, जो कि ऑटोमेशन पैनल सेगमेंट से। तो आपको देखोगे पैनल सेगमेंट 5 करोड़ से 10 करोड़ धंधा कर रहा है, इसलिए वो पैट मार्जिन कंपैरेटिवली समझ में आता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कंपनी 18 करोड़ का रेज ला रही है। 7 करोड़ वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए, लगभग 4.5 करोड़ रीपेमेंट ऑफ लोन के लिए है, और बाकी सब जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस एंड एक्सपेंसेस के लिए। ये वीडीएल कंपनी की बात हो रही है। अब अगर इसके बाद मैं बात करूं तो इसके जो पीएस हैं, तो पीएस कंपनी ने बताए आकांक्षा पावर और साक्षी मेडटेक बताएं, जो कि 85 एंड 39 पीई पे हैं। साक्षी हैजंट बीन ग्रोइंग सो फास्ट, तो वो भी 39 पीई पे है। और शिवालिक जो अभी रिसेंटली आई थी वो 55 पीई पे। ये जो कंपनी है ये 17 पीई पे आ रही है। सो कंपैरेटिवली आई फील काफी वैल्यू छोड़ी हुई है कंपनी ने। वन लास्ट थिंग, इसका जो एलएम है वो एफिनिटी ग्लोबल है। इससे पहले जो उनके इश्यूज थे, 3 में से 2 इश्यूज आर ऑन डिस्काउंट, ओनली 1 इज इन प्रीमियम। सो दैट्स काइंड ऑफ वेरी हाई लेवल रीड of VDL. I will be applying. And it might have slightly easier chances to get allotment क्योंकि इतने सारे अच्छे issues आ रहे हैं. Like there are a lot of good issues even on the SME side. So I'll be applying, and if allotted, I would want to hold and monitor execution. So that's my read of VDL. I would just highlight one more time that what we do is we record these spaces and post it on our YouTube channel, जो कि मैंने pinned comment में डाल रखा है. So if you want, go ahead and फॉलो द चैनल, ताकि आप वहां पे भी अपना जो स्पेस है हर आईपीओ को बाद में सुन सकते हो, और सिर्फ उतना स्पेसिफिक पोर्शन सुन सकते हो। विद दैट, तन्मय, रोहित, डू यू हैव एनीथिंग टू add on VDL, or we can move to the second power sector company, which is JB Lamination? I'll add just a couple of quick points on VDL. So some of the things that you had mentioned, I've seen in a couple of other reviewers or other reviews also, which is, they've not managed to, get their capacity. They've had like 100 crore worth of capacity and they're only at 25, 30 crore. There is a reason for that though. And in this segment, especially, with the client, in order to win clients, you kind of need to show that you have a certain amount of capacity to fulfill future orders for the same client too. It's for the exact same reason that even if you see, Shivalik, they actually have a 250 to 60 CR capacity and they did 70 crore in revenue, and they've had that capacity for quite a while. So I don't think that is a problem per se. This is also working capital intensive. You have to look at the company relative to the asking price. It's asking 17p. It is coming at a 50 crore market cap. So, for that, I find that what they're doing, which is 20 crore growing to 26 crore, perfectly reasonable. The promoter also does seem to have a vision. He uses some jargon, but he seems to have a vision beyond, beyond just what is, let's say, a panel manufacturing business. So bet मेरे हिसाब से ले सकता है. मैं तो अप्लाई करूंगा इसमें, और मेरे को काफी ठीक लग रहा था. But yes, please do your diligence. And the receivables point also, I think the promoter explained it. It is deal to deal. So in this case, they have a deal where the payment terms are a little later, which is why in this particular year it is higher. You have to take it at face value, what he says at face value. But yeah, I thought I'd just add these 2 points. Perfect. Thank you, Rohit. Maybe with that, I'll give you the highlight issue which you wanted to cover. So maybe do you want to go ahead and talk about JB Lamination? I'll set it up for you. It's a Noida-based company. Company जो है बड़ा issue है, ये probably सबसे बड़ा SME issue है of this week. 88 CR कंपनी रेस कर रही है, 22 CRO FSI, 66 CR फ्रेश इशू है, और कंपनी जो है वो ट्रांसफॉर्मर स्टील कोर्स मैन्युफैक्चर करती है. बट डू यू वांट टू गो अहेड एंड एक्सप्लेन दिस कंपनी टू एवरीवन? Yes. So JB Laminations, I'll just set it up by saying we recently had an IPO, Villas Transcore. When I first saw this, I really could not make out a difference between these two companies. These are like just literally twins. JB Lamination is a twin of Villas Transcore. With that, I'll just quickly explain what the company does and then get into, the details of the IPO itself. So these guys manufacture CRGO steel cores. This is basically cold rolled, grain-oriented steel cores, but very simply speaking, silicon steel is a raw material that goes into
or it's a raw material that is an alloy of iron and silicon that has magnetic properties, which makes it very useful in this power segment. Specifically, it's very useful in making transformers. And CRGO is where you take this silicon steel and you roll it in a particular direction, which sort of enhances these magnetic properties. CRGO steel cores make up about 20-25% of the cost of a transformer, and so it is a very critical component. And the steel itself is actually not found in it, or there's very, very limited players. I think there are only 2 manufacturers of the steel in India. And that's why, most of the steel itself is imported. I think only 30% of consumption is met through local. What JB does is they basically take these steel cores, the raw CRGO steel, and make slit coils, laminations, as well as the final assembled transformer, the transformer core itself. They operate today from a 11,000 square foot factory, which is spread across 2 units. They have around 11,500 tons per annum of capacity, and they're currently operating at about 83% capacity. They have said that they have added a new shed, which is already done through their own accruals, which, at least as per an interview, they've said will increase their capex by 60 to 70%. So you can say that it will get to about almost 18,000 tons per annum of capacity, which is actually quite healthy because they used about 9,000 tons last year. So as per their new capacity, which in the RSV says will be live in the month of August, which is the current month, they're ready to move to essentially, they're down now to only 50% utilization, not 80% as per the RHP. So one of the main things with this particular business, and we've seen this with a lot of the transformer businesses, you've seen this even with the mainboard peers, like a Silchar and all. Everyone is running at full capacity, and the growth is only limited by how much capacity that they have, because the sector is in such boom right now. And the fact that JB is ready today to increase their scale is a very, very good sign. Today, about 85% of business is domestic, 15% is export, and they focus mainly up to this 220 kilowatt segment. They are actually using this part of this new capacity to do 400 kV and 765 kV as well. In that segment, there is actually very less competition. And I think you kind of need to have a certain, experience and a certain amount of time in the segment to even start doing that. So that's also a bit of a moat that they've built. I believe Velas also is now entering into the same segment, but there are not too many players in that 400 and 765 kV segment. If you look at their working capital calculations, they are projecting almost 90% growth for this year. I don't know if that is feasible or not, given that the capacity is only going to be live now, but they certainly seem to be aggressive in terms of chasing growth. They're very good financials. I would say even better than, in terms of at least trend line, even better than Velas. They did about 300 crore, which was a 25% year-on-year jump, 6.5% PAT. Very good operating cash flows. Receivable cycle is improved. I think that's an industry trend where the receivables have improved everywhere, because there's so much demand that they are able to set the terms. And the balance sheet to me looked very clean. Also, this run currently by second generation promoters who are very well educated in the US, very, very market aware. So yeah, I couldn't really find too many things to nitpick on. Probably the most important thing is how similar this business is to Velas Transcore. Very, very similar product mix. The majority of the business here at JB also comes from laminations, which is the same for Velas Transcore. Very similar clients, super overlap between the clients. Very similar scale. Both have done around 300 crore last year. Very similar margins as well. JB has 1% lesser PAT margin. That is only because they have debt. They use that debt to set up the capex accruals, whereas Velas was using the IPO funds to do the capex. But apart from that, there is absolutely, many of these reviews, you say that company A cannot be compared to company B. These are not apple to apple comparisons. But if you cannot compare JB and Velas, you can never compare two companies, because everything is identical. If anything, I would say JB is actually slightly better because they sell slightly more per ton, which means that that is per ton of capacity that they have, they actually generate more revenue, which means that they're selling slightly higher value products, which also shows up in their gross margins a little, again, 0.5%, 1% here and there. So overall, I think the key thing is we all know what Velas trades at. Anyone can check on Screener. It trades at almost 50p. JB is coming at 17p. I really don't have to say too much more. I think I will be applying, and this looks like something that one can target on listing also, because there is clearly enough left on the table in my view. So yeah,
If anyone else, Manish or Tanmay, want to add anything, you feel free to. Yeah, just one thing from my end, मैं ये देख रहा था कि comparatively विलास के मुकाबले company has covered well. Like उनका FY22 में विलास से कम revenue था, but अभी वो उनने बराबर कर दिया. So if anything, they've been growing faster. Think of them Vilas, but from North India. That's how I'll kind of put it. And again, we were laughing at this joke today, जहाँ पे एक famous IPO review में लिखा हुआ था that these are not apples to apples comparison, and we thought that that's a template which दे यूज, क्योंकि अगर इन दोनों कंपनीज को आप नहीं कंपेयर कर सकते हो एप्पल्स टू एप्पल्स बेसिस पे, तो फिर प्रोबेबली आपका कोई भी कंपनी कभी कंपेयर नहीं हो पाएगी. बट या दैट्स व्हाट माय रीड ऑफ द कंपनी एज वेल. जो मुझे थोड़ा सा फाइंड आउट करना था वो कैपेसिटी से रिलेटेड था कि कैपेक्स कैसे होगा कंपनी का. दैट इज बिकॉज दैट इज समथिंग विच विल डिसाइड द ग्रोथ फॉर द कंपनी. बट या दैट्स प्रीटी मच इट इन टर्म्स ऑफ रीड ऑन जेबी लेमिनेशन. हम जेबी लेमिनेशन की बात कर रहे थे अभी तक. मैं ये जो फॉर द बेनिफिट ऑफ एनीवन हु हैज जॉइन न्यू, जिसने बीच में से ज्वाइन किया है, मैंने अपना यूट्यूब चैनल ऊपर पिन कर रखा है. गो अहेड एंड फॉलो दैट. कल सुबह मैं उस पर ये स्पेस भी डाल दूंगा ताकि आप स्पेसिफिक आईपीओ जो आपके मिस हो गए हैं वो भी आप जाके उस पर सुन सकते हो, एंड जस्ट दैट पार्ट ऑफ द आईपीओ. बट विद दैट आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट इशू विच इज केमिकल सेक्टर कंपनी. केमिकल सेक्टर की कंपनी की बात करते हैं. इंडियन फॉस्फेट कंपनी का नाम है. कंपनी बेसिकली लैप्सा करके केमिकल है वो बनाती है, जो कि हर वॉशिंग पाउडर, केक्स, टॉयलेट क्लीनर्स, लिक्विड डिटर्जेंट वगैरह में यूज होता है. But with that, having set that up, Tanmay, do you want to go ahead and speak about Indian Phosphate? Very interesting company. Yes, yes. So Indian Phosphate Limited produces linear alkyl benzene sulfuric acid, also known as LAPSA. It is used as a raw material in washing powder, washing cake. Uh, so this company is basically HUL, Hindustan Unilever Limited's largest supplier of LAPSA. Okay. This company also manufactures types of phosphates used in fertilizers. Okay. So this company is basically raising 67.4 crore. So they have given the breakup. They are setting up a new facility in Tamil Nadu, which will produce 100 metric ton LAPSA, 200 metric ton sulfuric acid, and 60 metric ton magnesium sulfate. This company is raising 25 crores for working capital, and rest 9 crore is GCP, out of which some will be the issue related expense. So I will go to the financials. This company did 77.1 crore revenue in FY23 and did a PAT of 16.6 crores. But FY22, the revenue dropped from 77 to 72 crores. And the PAT dropped from 16.6 to 12 crores. But interestingly, the borrowings increased from 15 crore to 40 crores. So basically what I could understand is this company is extremely working capital intensive. So this company has had to take additional debt to finance their working capital. So it's LMS Beeline and the market maker is Predix. So this both have extremely good track record, especially on the listing. Now I'll come to the negatives. So this company has 108 crore corporate guarantee given to their subsidiary, which is in hoteling business. Okay. मतलब ये साल का 10-12 करोड़ बनाती है, 108 करोड़ का कॉर्पोरेट गारंटी देके बैठी कैनरा बैंक को. तो मतलब कुछ भी हो जाए तो ये कंपनी टूट जाएगी इसकी वजह से. दूसरा मतलब निगेटिव है कि इसका 79% रेवेन्यू HUL सिंगल क्लाइंट से 79% रेवेन्यू आता है, तो क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन बहुत हेवी है. एंड यू नो HUL इज नोन टू शिफ्ट द सप्लायर्स. अगर कुछ भी हो जाए तो मतलब एक कंपनी इधर भी खत्म है. मतलब 79% रेवेन्यू बहुत हेवी होता है, मतलब 40% के ऊपर ही मेरे लिए वो रेड सिग्नल होता है. थर्ड चीज, ये इनका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है और जो प्रोडक्शन यूनिट है ये ओन्ड नहीं है, लीज्ड है. इफ द कंपनी इज अनेबल टू एक्सटेंड देयर लीज और कुछ इश्यूज हो जाए तो द कंपनी मतलब उनके पास ना प्रोडक्शन यूनिट बचेगा ना रजिस्टर्ड ऑफिस बचेगा. फोर्थ आई गो इज लाइक मशीनरी के लिए इन्होंने जो उन्होंने रेस कर रहे हैं 33 करोड़ फॉर कैपेक्स आईपीओ प्रोसीजर्स, तो उसमें से उन्होंने एक निकाला है कि हम 18 करोड़ का मशीनरी लेंगे. तो सर जनरली ऐसा होता है कि ये सेगमेंट की कंपनी है ये पहले ऑर्डर कर देती है और फिर ये पेमेंट करती है. अभी तक इस कंपनी ने ऑर्डर ही नहीं किया मशीनरीज. तो मतलब ये पैसा आएगा, फिर ऑर्डर करेगी, वो आए फिर वो मशीन आएगी, इंस्टॉल होगी, लाइंस प्रोडक्शन लाइंस बैठेगी, फिर ये प्रोडक्शन स्टार्ट करेगी. तो फिर ये थोड़ा ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगा. फिफ्थ पॉइंट मतलब ना थोड़ा सा मेरे को मतलब ज्यादा ही रेड फ्लैग लगा कि इसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. पहली बात तो ये लैप्सा सल्फ्यूरिक एसिड, लैप्सा तो ऑलरेडी ये कर रहे हैं,
सल्फ्यूरिक एसिड और मैग्नीशियम सल्फेट में कुछ नई चीजें कर रहे हैं जो अभी तक इनके पास है ही नहीं। तो उनका जो लैप्सा का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो सिर्फ 55% है। 55%, और ये पिछले साल से डिग्रोथ में है। तो पहली बात तो इनको वो लेवल पे आने के लिए और 2 साल तो लग ही जाएंगे बेर मिनिमम। फिर भी ये कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। इनका जो दूसरा सल्फ्यूरिक एसएसपी पाउडर करके चीज है, उनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सिर्फ 11% है। 11% इज नथिंग। मतलब वो मशीनरी और प्लांट के मतलब क्या बोलते हैं ऑपरेशंस को मेंटेन करने में इनका मार्जिन निकल जाता होगा। ग्रेन्युलेटेड एसएसपी का कैपेसिटी 14.4% और जो ग्रेन्युलाइज्ड ग्रीन एसएसपी पाउडर है वो 30% कैपेसिटी है। मतलब कैपेसिटी यूटिलाइज हो नहीं रही है। और इंटरनल्स देखे मैंने, मतलब इन्होंने एक्चुअली इनका जो प्रॉफिट था ना ये साल का 7-8 करोड़ बनता, बट उन्होंने कुछ एक्सपेंसेस मतलब ये साल में आईपीओ बाउंड ईयर में थोड़ा सा मतलब कंट्रोल कर लिया है। मतलब कई चीजें मतलब समझता है कि स्टॉक एंड ट्रेड समझता है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स इतना गिर चुका है, और टेक्निकल इनके कॉस्ट ऑफ जो रॉ मटेरियल्स है अगर आप मार्केट में देखने जाओ तो बड़ा है, बट इन्होंने घटते हुए दिखाया, तो मतलब थोड़ी सी इंटरनल्स में दिक्कत है। तो मेरा एक कंपनी पे ऐसा व्यू है कि कैपेसिटी तो है, मतलब फ्यूचर ग्रोथ तो एक्सपांड बिल्कुल कर सकते हैं, ग्रोथ आ सकती है, बट कहाँ से आएगी वी डोंट नो। क्योंकि इनके पास एक ही क्लाइंट है जो 79% पे बैठा है रेवेन्यू पे। तो मतलब आई फील कि ये लिस्टिंग इन पे चल जाएगा। बाद में फिर थोड़ा सा प्रमोटर का कुछ गाइडेंस आ जाए, मैनेजमेंट इंटरव्यूज आ जाए, तो वो सब देख के लॉन्ग टर्म पे सोचना। बट ठीक है, लिस्टिंग इन पे लगा सकते हो। और एक चीज, वैल्यूएशन भी 250 करोड़ के मार्केट कैप पे आ रही है। 20.7 के 7 टाइम्स पे हमारा वैल्यूएशन पी पे आ रही है। तो मतलब मेरे को लगा कि यार 15, 16, 17 तक ठीक था, ये 20 ज्यादा हो जाता है। तो सिंपल है इसमें, स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है, लिस्टिंग के लिए लगाओ, बाद में भूल जाओ काइंड ऑफ। परफेक्ट, दैट वाज वेरी क्लियर। तन्मय, मैंने एक बार आपसे एक क्वेश्चन है, बट अभी हम जस्ट वांटेड टू हाईलाइट, अभी हम इंडियन फॉस्फेट की बात कर रहे थे, एंड अभी मैं बताता हूँ कि मेरे हिसाब से जो 3-29 तारीख को कंपनियां हैं उनकी अलॉटमेंट चांसेस किस में सबसे ज्यादा रहेंगे एंड जीएमपी किस में ज्यादा रहेगा मेरे हिसाब से। बट हैविंग सेड दैट, बिफोर दैट तन्मय वांटेड टू गो बैक टू यू एंड आस्क, आपने इसकी एंकर बुक देखी क्या है? सो अ लॉट ऑफ नेम्स ऑन द एंकर बुक, एंड स्पेशली कंसिडरिंग कि ये केमिकल सेक्टर की कंपनी है जो कि इतना ट्रेंड अप ट्रेंड में नहीं है अभी, पर फिर भी एंकर बुक इसकी काफी अच्छी थी जो मैंने स्टडी की थी। इस पे आपका कुछ रीड है? मतलब सर एंकर बुक वॉज डिसेंट, अच्छे नाम थे। बट ना क्या होता है सर, अभी ये जो स्पेशली सल्फ्यूरिक एसिड सेगमेंट है ना, ये दूसरे केमिकल्स की तरह ऐसे टूट नहीं गया। मतलब 10-20% डाउन ट्रेंड जरूर आया, बट इट्स स्टिल इन रीजनेबल पोजीशन। अगर कंपनी ने अच्छा किया तो ये यहाँ से भी ग्रोथ कर सकते हैं। बट वही है ना यार, मतलब पिछले साल डी ग्रोथ है कुछ, मतलब फाइनेंशियल्स थोड़े से बनाए हुए लग रहे हैं मुझे, कि 12 करोड़ से वैल्यूएशन जस्टिफाई कर लेंगे। ऐसा करने की कोशिश की, नहीं तो टेक्निकल 8-9 करोड़ होता। तो मेरे को मतलब वो होता है ना, मतलब मजा नहीं आया। मतलब ठीक है, एक एवरेज टू गुड इशू बोलूंगा मैं। तो ठीक है, लिस्टिंग इनके व्यू से लगाओ, बात की फिर छोड़ दो। गॉट इट। परफेक्ट, दैट्स आवर रिव्यू ऑफ इंडियन फॉस्फेट। मेरे हिसाब से अगर जो मैं 29 तारीख को बात करूं तो जो 3 कंपनीज आ रही हैं, इंडियन फॉस्फेट, जेबी लेमिनेशन एंड वीडीएल, इन टर्म्स ऑफ जीएमपी, इंडियन फॉस्फेट विल प्रोबेबली हैव द हाईएस्ट जीएमपी क्योंकि बी लाइन प्लस मार्केट में स्प्रेडेक्स का मार्केट मेकर है, सो उसके मुकाबले अच्छी एंकर बुक है, तो इसलिए लिस्टिंग गेन्स काफी अच्छे मिलने की उम्मीद है। बट जीएमपी भी सबसे ज्यादा होगा तो अलॉटमेंट भी सबसे टफ होगा। जेबी वुड समवेयर बी इन बिटवीन, जहाँ पे क्योंकि बड़ा इशू है तो अलॉटमेंट वुड बी स्लाइटली इजियर टू इंडियन फॉस्फेट, बट जीएफपी भी थोड़ा कम रहेगा। वीडीएल probably will have, like again, VDL is a very small issue, so difficult to predict, but should have definitely decent chances of allotment. So that's our read of the issues which are coming in until 29th. उसके बाद अब 30th को 2 issues बंद हो रहे हैं जिनकी वही क्विकली बात करते हैं। पहले पैरामेट्रिक्स एंड एयरॉन। जस्ट बी केयरफुल कि आप जो 29 तारीख को पैसा लगाओगे वो 30 को रिपीट नहीं होगा क्योंकि वो एक दिन तो ब्लॉक रहेंगे पैसे। सो मेक श्योर यू आर कीपिंग दैट इन माइंड। बट हैविंग सेड दैट, 30 की जो कंपनियां हैं वो रिलेटिवली कैन बी ग्लैंस्ड अपॉन वेरी क्विकली। सो मे बी आई स्टार्ट विद पैरामेट्रिक्स। पैरामेट्रिक्स टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं। सो जो कंपनी है वो आईटी सर्विसेज, आईटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, काफी कॉम्पिटिटिव एंड फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री में काम करती है। और जो इसके मेजरली क्लाइंट्स है ना वो बीएफएसआई सेक्टर के हैं, बैंक्स वगैरह के साथ काम करती है। और जो प्रमोटर है उसको काफी एक्सपीरियंस है बैंक से काम करने का। सो उनके 2004 में उनने कंपनी बनाई थी और तब कोटेक सिक्योरिटीज के साथ काम करना चालू किया था। 2005 में कोटेक महिंद्रा बैंक उनने फिर लाए थे अपने प्लेटफॉर्म पे, कोटेक लाइफ साइंसेस लाए थे। और उसके बाद उनके अलावा दूसरी बैंक ऐड की, आईसीआईसीआई इनका क्लाइंट है, एक्सिस बैंक क्लाइंट है,
और भी कई सारे बैंक्स एंड बीएफएसआई सॉफ्टवेयर इनके लिए बनाती है कंपनी की 2 सब्सिडरी भी हैं, एक हांगकांग में है, एक सिंगापुर में है। एंड कंपनी जो है उसी के लिए पैसे रेस कर रही है कि अपने जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज हैं उस वाले सेगमेंट को बढ़ा पाए और मैनेज सर्विसेज वाले सेगमेंट को बढ़ा पाए। अगर आप कंपनी का मेजरली देखोगे तो अराउंड उनने 28 सीआर का रेवेन्यू किया था, जिसमें से अराउंड 12 सीआर इंडिया से था, 10 सीआर हांगकांग से था और एक बहुत ही छोटा सेगमेंट जो है वो सिंगापुर से आता है कंपैरेटिवली कंपनी का इन टर्म्स ऑफ द ज्योग्राफी दैट इट ऑपरेट्स। जो प्रमोटर है कंपनी के मुकेश केशुभाई कुमार, वो काफी टाइम से 25 साल का उनको एक्सपीरियंस है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करने का बीएफआई सेक्टर की कंपनीज में। सो काफी एक्सपीरियंस्ड कंपनी एंड उसके अलावा 209 एम्प्लॉइज हैं कंपनी के। सो स्केल ठीक ठाक है। बट जब मैं इनफैक्ट डीआरएच पे देख रहा था तो मैं देखा कि कंपनी ने काफी सारे केसेस कर रखे हैं ऑन इट्स एम्प्लॉइज। तो एम्प्लॉइज जब छोड़ के जाते हैं तो कई सारे नोटिस बॉन्ड वगैरह डालते हैं हम कंपनीज की, अगर आप इतना महीना पहले चले गए तो आपका बॉन्ड सर्व नहीं किया आपने तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा वगैरह। सो कंपनी ने कुछ 17 या 18 केसेस कर रखे हैं अपने एम्प्लॉइज पे जो बीच में छोड़ के गए। सो विच सीम लाइक कि कंपनी किसी भी तरीके से बस रिटेन करने की कोशिश कर रही है एम्प्लॉइज को और एम्प्लॉइज भग जा रहे हैं। सो विच वॉज अ रेड फ्लैग। अगर उसके अलावा भी आप देखोगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो डी ग्रोथ हुआ है। कंपनी ने जो है 28 करोड़ कमाए थे FY22 में, 33 सीआर कमाए थे FY23 में, अब FY24 में वापस से 28 करोड़ हो गया है। सो कहीं ना कहीं नंबर वही है। इट सीम्स लाइक दैट इज द नंबर एट विच कंपनी इज काइंड ऑफ ऑपरेटिंग। और अगर जो पैट की बात करोगे तो पैट भी काफी कम हो गया है। FY22 में 7 करोड़ था, FY23 में 7 करोड़ था, FY24 में 4 करोड़ हो गया है। सो द पैट हैज रिलेटिवली रियली रिड्यूस्ड। और अगर उसका आईपी देखोगे आप तो कंपनी जो है वो ज्यादा मार्केट कैप पे आ रही है, लगभग 120 करोड़ के मार्केट कैप पे आ रही है इफ आई रिमेम्बर इट करेक्टली, क्योंकि 4 करोड़ का रेज है और 30 के पीई पे आ रही है। सो 30 का पीई सीम्स लाइक टू हाई टू मी कंपैरेटिवली एंड अगेन doesn't leave anything a lot on the table for the investors, especially people who are getting in at this stage. उसके अलावा एक दो बातें और, जैसे कंपनी ने लिखा है कि वो 33 करोड़ का इशू कर रहे हैं, जिसमें से 30 करोड़ जो है वो फ्रेश इशू है, 3.5 करोड़ कंपनी का ओएफएस है जो प्रमोटर पैसे निकाल रहे हैं। सो जैसे 30 करोड़ जो यूज होने उनमें से 9.5 करोड़ कैपेक्स पे यूज होने, वो एक नया ऑफिस खोल रहे हैं। तो उस ऑफिस में जो 12 लाख रुपए रेंट भरेगा ऑफिस अगले 2 साल तक, वो भी आईपीओ प्रोसीड से भरेगा। जो 40 लाख का डिपॉजिट कंपनी भरेगी वो भी आईपीओ प्रोसीड से जाएगा। उसके अलावा लाइक 6.5 करोड़ रुपए कंपनी जो है वो अपने प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर जो है उसको इम्प्रूव करेगी, विच इज अगेन अंडरस्टूड, बट वो कैसे कर पाती है, कितना कर पाती है, दैट वील हैव टू सी। एंड 6.5 करोड़ रुपए मोटा मोटा कंपनी एक्सपेंड करना चाह रही है मिडल ईस्ट एंड ईस्ट एशिया में। सो इट्स अ ओल्ड कंपनी बट नॉट द बेस्ट राइट नाउ, स्पेशली कंसिडरिंग कि अभी इतने सारे इश्यूज है हमारे पास, दैट there are better opportunities in the market. And with that I'll kind of want to leave with my read, that this was my read of parametrics. हम ये read अपने YouTube channel पे भी डाल देंगे, so if you haven't followed the YouTube channel, go ahead, it's in the link in the comments. But having said that, if Tanmay and Rohit, you have anything to add on parametrics, or we can go to the last issue, which is Aeron Composite. I would like to add one thing. मुझे जो मतलब स्टडी करके लगा कि ये ना एक ऐसा मतलब टेपेट एकदम फ्लैट लिस्ट होगा, ये बहुत फ्लैट लिस्ट होना चाहिए, ऐसा एकदम मतलब 5-10% लिस्टिंग है इनके आसपास। बट आई फील बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज है जो अच्छे लिस्ट भी होंगे और लिस्ट के बाद भी चलेंगे, तो ये इसको अवॉइड करना ज्यादा अच्छा रहेगा एज पर मी। Got it. That's our read. काफी सिमिलर रीड, बट हैविंग सेड दैट नाउ आई विल गो ऑन टू रोहित। एक लास्ट इशू कवर करेंगे, yes slightly over time, sorry about that, but very quickly we will wrap up Aeron Composite. So Rohit, do you want to go ahead and talk about Aeron Composite, our last issue? उसके बाद हम एक बार ये जरूर करेंगे कि हम एक बार very high level summary दे देंगे कि these are the issues and so that you know, but over to you. Yeah, I'll do this one quickly. This is actually a somewhat interesting company, interesting business. They manufacture, this Aeron Composite, they manufacture fiberglass reinforced polymer products. This is basically a composite material. They use some polymers reinforced with these fibers, such as fiberglass or carbon, and create a product that is slightly better than your conventional, say, metal and aluminum and stuff. So this will have
features like being corrosion resistant, chemical resistant. They're very lightweight, very strong, less maintenance. And essentially, this is a replacement material. So in an industry where they might have used metal, aluminum, and so on, you can replace it with this. They make all kinds of products, handrails, fences, gratings, poles, rods. So it's a very, very diverse kind of use case once you figure out how to, mold these FRP products. And the interesting thing is, I think they are a proxy to many different industries because these products are used in water and oil and gas, telecom, renewables. All of these places will find use of anything that can help in terms of all the properties that this provides, right? Being lightweight, strong, or corrosion resistant, and less maintenance, and so on. They have very good clients, many MNCs, many Indian, I'd say government giants, ONGC, NTPC, Grasim, Tata. So a lot of big names. The company's actually done pretty well over the last, several years. Coming to the specifics of this business itself, they have a capacity today of around 19,000 tons per annum. They operate at around 60% utilization, and they are using the IPO funds to increase their capacity by another 70-75%. So that, with that money, there is no, or with the funds, there is not going to be any capacity constraint once the new factory is set up. And they've already started setting up that factory in a new location. The revenue growth has been decent till this year. I mean, last year, the 22 to 23 was excellent, but 23 to 24, the growth is only around 10%. The company said that this is mostly because of fall in raw material price. Therefore, the end product price also fell, but their volume growth is still good, around 25% from last year. Decent PAT. I think they'll do about 10 CR PAT this year. So PAT itself has grown 50% year on year, and the business is coming at 20p. The balance sheet is quite large, and receivables are increasing a little, but again, didn't seem like anything hugely concerning. The one thing that I felt was missing in the RHP, which would have been very, very helpful, is what is their industry breakdown? Like how much of their business comes from what product mix and servicing what industry? Because, all of us like to look at where they're present. Are they present in the oil and gas sector? Are they present in the water sector? Is 70% of business coming from telecom, or is it coming from paper? So depending on that, it will give us a sense on how fast they can grow and what industries they're able to penetrate. If that information were there, I would have been a lot more confident on projecting how this business could have grown. But that information is not there in any interview or in the RHP. And there is no real peer that I could find. The only other player in the SME space that I could see that makes any kind of FRP products is RMC Switchgears, but it's a very, very small part of their business. And of course, that company is not even being valued on this, it's being valued on something else. So can't really find a relative valuation either. But I still think this is a fairly unique biz. It's a proxy to so many of the fast growing industries in the country. For example, in water, instead of laying stainless steel pipes, you can lay FRP pipes. But how much of their business today comes from that, I don't know. And so I think it will do well. I will actually wait and see who the anchors are. I think that may also give us a sense. Maybe in the next couple of days, there'll be some other interviews or roadshows where we'll get a little bit more information on the growth and the sort of industries they cater to and their current breakdown. I am quite interested in this business. Just I feel a little bit of information is missing. And so I will wait and see till the last day. And if there's more information, that will help make it easier to apply. And I will also share my point of view on Twitter, because we can't share the full point of view here because of lack of info. If there is more info before the 30th, we will try and share it at least on our on our profiles. Got it. Perfect. That is what our read was with respect to some of the issues which are open. I just want to highlight two things at the end for the people who have stuck till now. One is with respect to shareholder quota. मैंने एक thread डाला हुआ है पिन में कि shareholder quota क्या होता है. Still time, go ahead and buy a share of either Bajaj Finance or Bajaj Finserv because that IPO is about to hit and उसमें shareholder quota होगा. So definitely go ahead and do that. Second, मैंने एक thread और डाला है pinned में, which is how to read RHPs. So Rohit had written a thread today on what all are the highlight things which you should look at. So if you want, go ahead and look at that thread as well, because it will also add to some of the nuances that we have picked up. And again, we are still learning, but what we wanted to do is we wanted to share all of these with the larger community. Those were the two things which I wanted to highlight.
would just close with saying that Premier would be a very, very good issue. So definitely go ahead and apply. Like I would be definitely going ahead and applying to that issue. And then on the SME side, Indian Phosphate, JB Lamination, we look good. So that's like my high level read. Over to you, Tanmay and Rohit, for any closing यस comments. मैं ना थोड़ी चीजें सारी मतलब समरी करके बताऊंगा। पहली बात तो मेन बोर्ड्स में प्रीमियर एनर्जीज 110% लगाना है, बिल्कुल लगाना है, भूलना नहीं है। इकोस मोबिलिटी भी बहुत अच्छी कंपनी, 40-50% लिस्टिंग है, वहां पे भी बन जाएगा। एसएमई में पैरामीट्रिक्स और रैपिड छोड़ के सब लगाना है एकदम, मतलब संक्षिप्त में बताया जाए तो। दूसरी चीज मैं बोलूंगा कि अगले स्पेस भी जरूर अटेंड करना। वी हैव बाजार रिटेल विच इज बैक्ड बाय राकेश झुनवाला, 850 करोड़ का वो भी इशू है। वी हैव गाला प्रेसिजन इंजीनियरिंग विच इज इंडिया लार्जेस्ट, मतलब वो एक प्रोडक्ट में है, वो इंडिया में नंबर 1 है उसमें। फिर वी आर गोइंग टू हैव 2 मोर मेन बोर्ड आईपीओस, बहुत जल्दी आएंगे वो। और 180 करोड़ का 160 करोड़ का इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट एसएमई आईपीओ भी खुलने वाला है। एंड द थर्ड थिंग इज लाइक बजाज हाउसिंग शेयर होल्डर कोटा। आई थिंक थर्सडे फ्राइडे तक आप खरीद सकते हो, अभी भी चांस है, आप मंडे पे भी लोगे, यू विल बी एलिजिबल फॉर द शेयर होल्डर कोटा। एंड आई पर्सनली फील कि आपने 13 लॉट लगाए शेयर होल्डर कोटा में, यू विल श्योरली गेट 1 लॉट। सो मतलब आप 1,90,000 लगा के आप 1 लॉट सिक्योर कर सकते हो, और कुछ ना कुछ तो श्योरली बनेगा। मतलब इजी मनी है, डेफिनेटली मिलना चाहिए। एंड वहां पे भी बहुत एक्साइटमेंट रहेगा, वो भी सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। तो अगला स्पेस पे अटेंड करना है और ये सारे आईपीओ भी लगाने हैं। Very well, summary. I wish I was this eloquent. But Rohit, do you have any closing comments? No, nothing. I think Tanmay said it beautifully. परफेक्ट। आई विल वन मोर टाइम हाईलाइट कि ये जो स्पेस है ये मैं कल रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दूंगा। सो इफ यू हैवंट फॉलोड द यूट्यूब चैनल, गो ahead and follow it. It's the first comment as well as a pinned above, and look forward to like जो भी आपको स्पेसिफिक आईपीओ के डाउट्स है वो आप उसमें जाके सुन सकते हो। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, पोस्ट देम इन द चैट, वी विल कवर देम। We will see you guys hopefully next weekend, but हो सकता है हम Monday करें. Depends on how things are shaping up, but we'll do this where we'll kind of cover them. Thank you so much, guys, for joining. Have a good night. Thank you, everyone. थैंक यू एवरीवन।